Good morning, my dear students. This is your physics class of ninth grade. In this class, we will revise exercise 3C. Let's start. Question number 1. Name two factors on which the force needed to stop a moving body in a given time depends. ठीक है, वो कौन से दो factors हैं जिस पर force depend करते to moving a stop body. To stop a moving body, force needed to stop a moving body in a given time depends on its mass and velocity. किस पर डिपेंड करती है? मास एंड वेलोसिटी पर. डिफाइन लीनियर मोमेंटम. अब लीनियर मोमेंटम क्या होता है, उसकी एसआई यूनिट्स क्या होती हैं? लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी. लीनियर मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. Next, a body of mass m moving with the velocity v is acted upon by a force. ठीक है, एक बॉडी m, उसका मास m है, मूविंग कर रहा है वेलोसिटी v से, उस पर फोर्स अप्लाई हो रही है. राइट एक्सप्रेशन फॉर चेंज इन मोमेंटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. हमने एक्सप्रेशन लिखना है चेंज इन मोमेंटम का जब v इज लेस देन c. ठीक है, अगर वेलोसिटी है लेस देन स्पीड ऑफ लाइट से, व्हेन v टेंड्स टू c, ठीक है, अप्रोच कर रही है c को, v is very small c but m does not remain but mass constant नहीं है. तो पहले केस में क्या होगा? when v is less than c, delta p equal to delta m, m is constant means velocity क्या होगी? चेंज होगी. इन द सेकेंड केस delta m v, when velocity tends to speed of light, then m delta v means mass भी चेंज हो सकता है. when mass does not remain constant, then same delta p equal to delta m v. Next, show that the rate of change of momentum is equal to mass into acceleration. Under what condition does the relation hold? ठीक है, हमने शो करना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके ऊपर होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन के. लेट एफ अ फोर्स applied on a body of mass m for time t due to which its velocity changes from u to v. ठीक है, u is initial velocity and v is final velocity. तो what is the formula of momentum? Momentum is equal to mass into velocity. तो m initial momentum of body equal to mu and final momentum of body is equal to mv. Change in momentum of body in t seconds, that is mv minus mu. Change in momentum ये होता है ना, final minus initial, that is mv minus u. Then rate of change of momentum means rate related to time. Change in momentum over time, then you have to write the formula mv minus u upon t. बट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी. v माइनस यू इज वेलोसिटी, देन वी डिनोट v माइनस यू अपॉन t बाय a. फ्रॉम दिस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू ma मास इंटू एक्सेलरेशन. दिस रिलेशन होल्ड्स ट्रू व्हेन द मास ऑफ द बॉडीज रिमेन कांस्टेंट. जब मास क्या होगा? कांस्टेंट होगा, तब ये रिलेशन क्या करेगा? होल्ड करेगा. Next, two bodies A and V of same mass are moving with velocities v and 2v. एक की velocity v है, दूसरी की velocity 2v है, उनका mass same है. Compare their inertia and momentum. हमने उनका momentum and inertia compare करना है. Mass is the measure of inertia. Let m be the mass of the body. ठीक है, हम inertia mass से measure करते हैं. Inertia of body A ratio inertia of body B, that is m into m equal to 1 into 1. Then momentum of body A equal to mv. Momentum is mass into velocity and second body is m2v. And the ratio of the momentum A and B is equal to 1:2. Sixth question is similar. ठीक है, उसमें हमने क्या करना है? टू बॉल्स हैं और बी, जिनका मास है m एंड 2m और इनकी वेलोसिटीज़ है 2b एंड v. तो इनकी रेशियोज़ क्या आ जाएंगी? वेलोसिटीज़ की रेशियोज़ आ जाएंगी. इनर्शिया क्या आ जाएगी? 1:2 एंड मोमेंटम क्या आ जाएगी? 1:1. राइट. एंड द थर्ड इज द फोर्स नीडेड टू स्टॉप देम इन द सेम टाइम. कितनी फोर्स लगेगी? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट. देन फोर्स नीडेड टू स्टॉप ए रेशियो फोर्स नीडेड टू स्टॉप बी इज इक्वल टू 1:1. because the force is directly proportional to the change of momentum. Next, state law, Newton's second law of motion. What information do you get from it?
आपने न्यूटन्स का सेकंड लॉ डिफाइन करना है। According to Newton's second law of motion, the rate of change of momentum is directly proportional to the force applied on it, and the change of momentum takes place in the direction of force is applied। क्या होता है न्यूटन का सेकंड लॉ कि जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, जो मोमेंटम चेंज होता है वो किस पर डिपेंड करता है, फोर्स अप्लाइड पर, एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम टेक्स प्लेस, किसके डायरेक्शन में चेंज होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। इट गिव्स द क्वालिटेटिव वैल्यू ऑफ फोर्स दैट इट इज रिलेटेड द फोर्स टू द मेजरेबल क्वांटिटी सच एज एक्सेलरेशन एंड मास। नेक्स्ट, हाउ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिफर फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स का सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ से कैसे डिफर है। Newton's first law of motion gives the qualitative definition of force. It explains the force as the cause of acceleration only। ठीक है, उसकी जो फर्स्ट लॉ है वो इन द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन डिफाइन करता है फोर्स को, बट जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो क्या देता है, गिव क्वालिटेटिव वैल्यू ऑफ फोर्स। ठीक है, जो फर्स्ट लॉ है उसकी डेफिनेशन देते हैं, सेकंड लॉ देते हैं फोर्स की वैल्यू देते हैं। इट स्टेट दैट एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, दस इट रिलेट फोर्स एज द मेजरेबल क्वांटिटी सच एज एक्सेलरेशन एंड मास। राइट मैथमेटिकल, ठीक है, फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मैथमेटिकली फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब रिलेशन होल्ड फॉर द फॉलोइंग कंडीशंस व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज़ मच स्मॉलर दैन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी स्मॉल होगी एंड द व्हेन द मास रिमेन्स कांस्टेंट। हाउ कैन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बी ऑब्टेन फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट लॉ कैसे हम ऑब्टेन करेंगे, हमारे पास क्या होता है, F इक्वल टू एम ए, इफ़ F इक्वल टू ज़ीरो देन M इक्वल टू ज़ीरो। दिस मीन्स दैट इफ़ नो फोर्स इज अप्लाइड इन द बॉडी इट्स एक्सेलरेशन, if no force is applied on the body its acceleration will be zero। अगर कोई फोर्स हम अप्लाई नहीं करेंगे तो उसकी एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी। इफ़ द बॉडी इज एट रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट पर है देन इट विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, एंड इफ इट इज मूविंग देन इट विल रिमेन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम स्पीड। दस द बॉडी नॉट एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। Thus, a body not acted upon by an external force does not change its state of rest or motion। This is the statement of Newton's first law of motion। ठीक है, कैसे रिलेट करते हैं, अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगी तो उसके, अगर हम फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे तो उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। इफ़ अ बॉडी इज एट, अगर कोई बॉडी फिर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगी, अगर वो मूव नहीं कर रही, मूव कर रही है तो वो सेम डायरेक्शन में मूव करी जाएगी। ठीक है, और ये किसकी स्टेटमेंट है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ की। तो हमने ग्राफ ड्रॉ करने, वो आप देख लो कैसे करने हैं। एक्सेलरेशन ऑन फोर्स फॉर अ कांस्टेंट मास। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, दोनों में क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ डज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूसेस बाय अ गिवन फोर्स डिपेंड ऑन द मास ऑफ बॉडी। कैसे वो डिपेंड करती है, if a given force is applied on bodies of different masses then the acceleration produced in them is inversely proportional to their masses। acceleration क्या है, inversely proportional। the graph is like curve। ठीक है, एक तरह की कर्व बने, ग्राफ प्लॉटेड हाइपरबोला, ग्राफ प्लॉटेड फॉर एक्सेलरेशन ए अगेंस्ट मास एम इज हाइपरबोला। ठीक है, वो हाइपरबोला बन जाए क्योंकि दोनों के इन्वर्सली रिलेशन है। नेम द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, हमने ऐसा यूनिट बतानी है फोर्स की, एंड डिफाइन इट। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। हम न्यूटन को कैसे डिफाइन करेंगे, 1 न्यूटन इज़ द फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ बॉडी of mass 1 kilogram and produces an acceleration of 1 meter per second, that is 1 Newton equal to 1 kilogram into 1 meter per second। What is the CGS unit of force? अब CGS unit क्या होगी फोर्स की, the CGS unit of force is dyne। 1 dyne is the force which act on a body of mass 1 gram and produces an acceleration of 1 centimeter square, that is 1 dyne equal to 1 gram into 1 centimeter square। Next, name the SI unit and CGS unit of, SI unit of force is Newton and CGS unit of force is dyne, and how are they related, 1 Newton is equal to 10⁵ dyne। Your next question is,
Why does a glass vessel break when it falls on a hard floor but it does not break when it fall on a carpet? तो क्या होता है, अगर कोई ग्लास वेसल अगर वो फ्लोर पर गिरेगा तो वो ब्रेक हो जाएगा, बट अगर वो किसी कारपेट पर गिरेगा तो वो ब्रेक नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है? When a glass vessel falls from a height on a hard floor, it comes to rest almost instantaneously, that is in a very short time. So the four क्या होता है, अगर कोई ग्लास वेसल गिरता है हाइट से हार्ड फ्लोर पर, वो रेस्ट पर आ जाता है, एकदम रेस्ट पर आ जाता है इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। सो द फ्लोर एक्सर्ट अ लार्ज फोर्स ऑन द वेसल्स एंड इट ब्रेक्स। ठीक है, फोर्स क्या, फ्लोर क्या करता है, लार्ज फोर्स एक्सर्ट करता है वो वेसल पर, वो ब्रेक हो जाता है। हाउएवर इफ it falls on a carpet then the time duration in which the vessel come to rest increases। ठीक है, अगर वो कारपेट पर गिरता है तो उसके रेस्ट में आने की जो टाइम ड्यूरेशन है वो ज़्यादा हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सो द कारपेट एक्सर्ट लेस फोर्स ऑन द वेसल एंड इट डज नॉट ब्रेक। ठीक है, अगर वो हार्ड फ्लोर पर गिरेगा तो उसकी टाइम ड्यूरेशन होगी रेस्ट में आने की बहुत ज़्यादा होगी, मीन्स इन वेरी शॉर्ट टाइम वो रेस्ट पर आ जाएगा। बट अगर वो कारपेट पर गिरेगा तो क्या होगा, उसकी जो टाइम ड्यूरेशन टू कम्स रेस्ट इंक्रीजेज एंड कारपेट एक्सर्ट लेस फोर्स ऑन द वेसल एंड इट डज नॉट ब्रेक। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग। हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से इसे एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। ठीक है, उसके बेस पर हमने ये एग्जाम्पल्स को क्लैरिफाई करना है, एक्सप्लेन करना है। क्रिकेट pulls his hand back while catching a cricketer pulls his hand back, ठीक है, while catching a fast moving cricket ball। ठीक है, 1 second बेटा, I will see a cricketer। ठीक है, CRICKETER, a cricketer pulls his hands back while catching a fast moving क्रिकेट बॉल। ऐसा क्यों होता है? वही पुल आवर हैंड्स बैक वाइल कैचिंग अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल बिकॉज बाय डूइंग सो वी इंक्रीज द टाइम ऑफ कैच, दैट इज इंक्रीज द टाइम टू ब्रिंग बॉल अबाउट अ गिवन चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, जिसमें मोमेंटम चेंज होगा हम उसके टाइम को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। एंड हैंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीजेज, दैट इज़ अ स्मॉल फोर्स इज एक्सर्ट ऑन आवर हैंड्स बाय द बॉल। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं हम? अगर हम अपने क्या करते हैं, वी पुल आवर हैंड्स बैक वाइल कैचिंग अ फास्ट मूविंग बॉल बिकॉज बाई डूइंग सो, अगर हम ऐसा करेंगे वी इंक्रीज द टाइम ऑफ कैच, हम कैच का टाइम इंक्रीज कर लेंगे, दैट इज इंक्रीज द टाइम टू ब्रिंग अबाउट अ गिवन चेंज इन मोमेंटम। अगर टाइम इंक्रीज हो जाएगा ब्रिंग चेंज इन मोमेंटम का, एंड हैंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। दस द स्मॉल फोर्सेज एक्सर्टेड ऑन आवर हैंड्स बाय बॉल। ठीक है, और सेकंड, एन एथलीट प्रेफर्स टू लैंड ऑन सैंड इंस्टेड ऑफ हार्ड फ्लोर वाइल टेकिंग अ हाई जंप। व्हेन एन एथलीट लैंड्स फ्रॉम अ हाइट ऑन अ हार्ड फ्लोर हिज फीट्स कम टू रेस्ट इंस्टेंटेनियसली। ठीक है, सेम वही ग्लास वाली एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर हम हार्ड फ्लोर पर आएंगे तो हमारी जो फीट है वो इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पर आ जाएंगे, दैट इज़ फोर्स एक्सर्ट सो अ लार्ज फोर्स इज exerted by the floor on his feet, but if he lands on sand his feet push the sand for some distance, therefore the time duration in which his feet come to rest increases. As a result the force exerted on his feet decreases and he is saved from getting hurt। same as क्वेश्चन नंबर 16 जो हमने पढ़ा है कि ग्लास वेसल क्यों टूट जाता है, सेम रीज़न है कि अगर वो किसी हार्ड फ्लोर पर आएगा तो इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में आ जाएगा, जिसकी वजह से वो हर्ट होगा। नाउ बेटा वी रिवाइज दी न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल्स। ठीक है, द ऑल सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स, दिस ऑल सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस काइंड्स ऑफ एग्जाम्पल, वी विल रिवाइज ओनली एग्जाम्पल्स। ठीक है, यू जस्ट रिवाइज सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स बाय योरसेल्फ। फर्स्ट एग्जाम्पल इज हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास दिस। ठीक है, हमें मास गिवन है, एक्सलरेशन गिवन है, हम फॉर्मूला लगा देंगे F = m a, तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अ फोर्स एक्ट फॉर 0.1 सेकेंड, मीन्स हमें टाइम गिवन है ऑन अ बॉडी ऑफ मास, हमें मास गिवन है, इनिशियली क्या है, रेस्ट पर है, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0. The force then ceases to act and the body moves through 2 meter in next 1.0 second. Find the magnitude of the force. ठीक है, when the force ceases to act, अगर जब force stop हो जाएगी, the body will move with the constant velocity. उसके बाद body constant velocity के साथ move करना शुरू कर देगी. Since it moves the distance 2 meter in 1 second, ठीक है, 2 meter move करेंगे in 1 second, therefore the uniform velocity is 2 meter per second. Thus, under the influence of force, the body acquires a velocity 2 meter per second in 0.1 second. That is u equal to 0, v equal to 2 meter per second, t इतना है, मास भी गिवन है. तो एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम. चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया, पहले इनिशियल 0, फाइनल 2, एंड टाइम कितने में, 0.1 सेकेंड में. ठीक है, तो मास कितना था 1, तो हमारे पास एक्सप्रेशन कितनी आ गई, 20 मीटर पर सेकेंड. तो फोर्स फ्रॉम रिलेशन एफ इक्वल टू एम में वी गेट द वैल्यू ऑफ फोर्स. नेक्स्ट, अ बॉल ऑफ मास 10 ग्राम इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, एक बॉल है जिसका मास कितना है 10 ग्राम, वो मूव कर रही है वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड से. ऑन अप्लाइंग अ कांस्टेंट फोर्स ऑन द बॉल फॉर 2.0 सेकेंड, इट रिक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 70 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अगर हम अप्लाई करते हैं फोर्स किसी बॉल पर फॉर 2.0 सेकेंड, देन इट रिक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 70 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कैलकुलेट द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉल. हमने क्या कैलकुलेट करना है, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एक्सेलरेशन एंड मैग्नीट्यूड. तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें गिवन क्या है, एक तो हमें मास गिवन है, ठीक है, उसे हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे. एक इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड. फाइनल कितनी है, 70 मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम कितना है 2. तो इनिशियल मोमेंटम इज मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी. फाइनल मोमेंटम फिर हम निकालेंगे, फिर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ओवर टाइम इंटरवल, एंड देन एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, एंड देन फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. राइट. नेक्स्ट, अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 100 kg moving with the speed of 30 meter per second is brought to rest by a player in 0.03 second. ठीक है, हमारा मास कितना है 100 ग्राम, स्पीड कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट पर आ गई. ठीक है, मीन्स फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, एंड टाइम कितने 0.03 सेकेंड. हमने फाइंड क्या करना है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल एंड द एवरेज फोर्स अप्लाइड बाय द बॉल. ठीक है, तो एवरेज फोर्स क्या होती है, हमें अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम टेकन. तो एम इक्वल टू 100 ग्राम, तो उसे किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो. u 30, v 0 एंड t 0.03 सेकेंड. इनिशियल मोमेंटम एम यू दैट इज 0.1 इंटू 30 दैट इज 3.0 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. फाइनल मोमेंटम एम वी 0, देन चेंज इन मोमेंटम इनिशियल माइनस फाइनल दैट इज माइनस 3.0 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. एंड एवरेज फोर्स कितनी होगी, चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम, वो हमारे पास कितनी आ गई, -100 न्यूटन. नेगेटिव साइन हेयर शोज द फोर्स इज अप्लाइड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ बॉल. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर न्यूमेरिकल्स. ट्राई टू understand the solved numericals by unsolved numerical by yourself. Thanks and have a nice day.